اگر یہ آپ کے ساتھ رہنے آئے ہیں تو مجھے ضرور بتا دیجئے، اسی حساب سے مجھے کچھ اضافے بھی کرنے ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس نے مسکرائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسکرائل بڑی بے نیازی سے اس کے پیچھے ٹنگی ہوئی بابرا شریف کو دیکھتا رہا۔ ہاں رحیم بھائی، اب یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، میں نے مرے مرے سے لہجے میں کہا۔ رحیم کو پیسے دے کر ہم باہر نکل آئے۔ گھر پہنچ کر میں نے بستر لگائے۔ مسکرائل کا اصرار تھا کہ وہ میرے ہی کمرے میں سوئے گا۔ ہم دونوں اپنے اپنے بستر پر دراز ہو گئے۔ میں مسکرائل سے جناتی برادری کے قصے سننے لگا جو میرے لیے بےحد حیران کن تھے۔ اس کے تبشت حضور بےحد سخت گیر تھے، لیکن تبشت جہاں بہت شفیق قسم کی ہستی تھی۔ ملازمین کی خاصی بڑی فوج تھی گھر پر۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 2-4 دن اور وہ یہاں رک گیا تو اس کی ڈھونڈ مچ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس نے جناتی معاشرے کے متعلق کافی معلومات فراہم کی جنہوں میں تعلیم حاصل کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہاں عام طور پر جناتی زبان بولی جاتی تھی، لیکن کسی حد تک اردو کا رواج بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے جنوں نے ہمارے ہاں انسانی روپ میں آ کر تعلیم حاصل کی تھی۔ ان میں بہت سارے جن ایسے بھی تھے جنہوں نے اردو میں ایم اے کیا تھا، بلکہ 2 جن تو ادیب فاضل اور منشی کامل کی اسناد بھی حاصل کر چکے تھے۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ اچانک جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہاں زلزلہ تو چند لمحوں کے لیے تھم گیا، لیکن گولہ باری شروع ہو گئی۔ تب کہیں میری سمجھ میں آیا کہ کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 9:30 بجے تھے۔ دروازہ بدستور پیٹا جا رہا تھا۔ بالآخر مجھے اٹھنا پڑا۔ مرزا دہشت بیگ کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ نہ جانے اسے دیکھتے ہی مجھے بہت زور کا غصہ آیا۔ یار مرزا، تم بہت تکلیف دہ ثابت ہو رہے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تم سے عاجز آ گیا ہوں، نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب تم سے تعارف ہانگ کانگ کی فیور لیوبا ہوگی۔ اس نے نہایت اطمینان سے کہا، اس میں صبح کے وقت دوپہر ہوتی ہے اور دوپہر کے وقت شام۔ میری مانو تو اسے کسی ریلوے لائن پر رکھ کر خودکشی کروا دو۔ پھر اس نے پلٹ کر گلی کی طرف دیکھا۔ زیتون کے دروازے پر لٹکا ہوا پردہ پھڑپڑا رہا تھا۔ واہ گاجر کا حلوہ، مرزا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بال درست کرنے کے سے انداز میں سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مردود در حقیقت اس نے آبنوس کی خدمت میں سلام پیش کر رہا تھا۔ میرے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ زیتون جواباً کوئی ایسا وعلیکم رسید کرے کہ اس ناول گھسیٹ کے بچے کی بتیسی گلی میں بکھر کر رہ جائے۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا لگا۔ پتہ چلا کہ مرزا مجھے دھکیل کر اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں دانت پیستا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ جیسے ٹھٹک گیا۔ پھر اس نے ایک زوردار سلام داغ دیا۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کہیں دہشت بیگ سے حالی پا کر لیٹ گیا تو مجھے رات فرش پر ہی گزارنا پڑے گی۔ مسکرائل نے بڑے شائستہ لہجے میں اسے سلام کا جواب دیا، پھر سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں منہ پھلائے خاموش لیٹا رہا۔ مرزا چند لمحے ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ میں خاموش رہا تو اس نے خود ہی گفتگو چھیڑ دی۔ آپ سے کبھی نیاز حاصل نہیں ہوئے؟ اس نے مسکرائل سے کہا۔ مسکرائل اس طرح اچھل کر بستر پر بیٹھ کے جیسے بستر میں یک کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ ہم نظر نیاز کے قائل نہیں ہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ سے تعارف نہیں ہے۔ مرزا گڑبڑا گیا۔ وہ تو آپ سے بھی نہیں ہے، مسکرائل گرایا۔ مرزا نے بڑی مظلوم نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں ابھی خاموش رہا، البتہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کہا کہ جہنم میں جاؤ۔ وہ آپ کا نام؟ مرزا نے پھر بات چھیڑی۔ میں مسکرائل کہتے کہتے رک گیا۔ اسے اچانک ہی یاد آ گیا کہ اس کا اصل نام قابل قبول نہ ہوگا، لہٰذا بات نبھانے کے لیے حاصل توقف کے بعد بولا، نہیں بتا سکتا، مسوڑوں میں کوئی تکلیف ہے۔ مرزا بالکل ہی بوکھلا گیا۔ میں نے آپ کا نام پوچھا تھا جناب۔ او اچھا، میرا نام اسماعیل ہے۔ خادم کو مرزا تفضل حسین کہتے ہیں، لیکن ادبی حلقوں میں مرزا دہشت بیگ کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ اب تک 250 ناول ترجمہ، میرا مطلب ہے تحلیق کر چکا ہوں، لیکن معاشرے نے میری قدر نہیں کی اور اب میں ذبح حالی۔ مسکرائل اچھل پڑا۔ او تو آپ ہیں وہ دہشت بیگ، اس نے پرتپاک لہجے میں کہا اور مرزا سے لپٹ گیا۔ میں انگشتے بدندار رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ اصولاً مجھے اپنا سر پیٹ لینا چاہیے تھا۔ مرزا بھی اس اچانک پذیرائی پر ششدر رہ گیا تھا۔ پھر جب مسکرائل نے اپنے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں اسے تشریفیہ کہا تو بالکل سناٹے میں آ گیا، لیکن اس عالم میں بھی بستر پر تشریفیہ سے باز نہ آیا۔ مسکرائل بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ ناول کیا نام ہے اس کا؟ جن کا اغوا، آپ ہی نے لکھا تھا نا؟ اس نے پوچھا۔ مرزا نے بے ساختہ گردن اکڑا لی اور سینہ بلکہ پسلیاں بھی پھلا لی۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ پسلیاں پھلانے کے نتیجے میں اس کے لیے بولنا مشکل ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے اندر ہی اندر سانس خارج کر دیا اور نتیجتاً بالکل ہی پچک گیا۔ اس ناول میں آپ نے جن برادری کے طرز زندگی اور بدوباش کی عجیب و غریب منظر کشی کی ہے۔ آپ کو وہ ناول لکھنے کے لیے مواد کیسے اور کہاں سے ملا؟ پہلے ان کی بغل میں گلٹیاں نکلی تھیں، پھر گدی میں پھوڑا نکلا تھا۔ اتنا بڑا پھوڑا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھوڑا کیا تھا، مواد کا سمندر تھا۔ وہ پھوٹ جاتا تو کم سے کم یہ شہر تو غرق ہی ہو جاتا، میں نے بہت بھنا کر کہا۔ یہ مذاق کر رہے ہیں، مرزا نے ہنس کر کہا، پھر آنکھیں نکال کر مجھے گھورا اور دوبارہ مسکرائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دراصل میں نے جناتی معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس ناول میں تو میرے مشاہدے کی بس ہلکی سی جھلک ہے، بہت کچھ تو میں سینے میں چھپائے بیٹھا ہوں۔ مرزا نے پسلیوں کے اس پنجر کو پیٹتے ہوئے کہا جسے وہ اپنا سینہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے مسکرائل کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک ابھرتے دیکھی۔
مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اس اول درجے کے جھوٹے ناول نگار مرزا دہشت بیگ کی شامت آنے والی ہے۔ وہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے؟ مسکرائیل نے پوچھا۔ ارے صاحب، میں جنوں ہی میں پلا بڑا ہوں۔ میں چھوٹا سا تھا کہ ایک جن مجھے اغوا کر کے لے گیا۔ میرے والد صاحب نے ایک عامل سے رجوع کیا، 7 سال ہو گئے، مگر عامل صاحب کچھ بھی تو نہیں کر سکے۔ ادھر میں جنوں کی بستی میں رہتا رہا۔ جن مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے میری تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی، بہترین مونٹیسری اسکول میں داخل کرایا۔ یوں 10 سال بیت گئے۔ کچھ تو میں بھی بہت ذہین تھا، بہت ٹپاک۔ مرزا نے پھر سینہ پھلانے کی کوشش کر ڈالی اور اس کی آواز بدل گئی، تباہ پٹاخ ہو کر رہ گیا۔ پھر شاید اس نے آپے میں آنے میں ہی بہتری سمجھی۔ جی ہاں، میں بہت ذہین تھا۔ خدا نے مجھے بہت سی صلاحیتیں بخشی تھی، بہت سے علم میں نے بغیر کسی رہنمائی کے سیکھے ہیں۔ تو جناب، میں 15 سال کا تھا، اغوا کنندہ جن کا انتقال ہو گیا۔ اصولاً اس کے بعد بادشاہت مجھے ملنی چاہیے تھی، لیکن وہاں محلاتی سازشیں شروع ہو گئیں۔ ایک رات میرے محل پر شب خون مارا گیا۔ میں نے 7-8 جنوں کو بوتل میں بند کر لیا۔ میں چاہتا تو ان کا بادشاہ بن بیٹھتا۔ جنوں کی حسین ترین شہزادی مجھ پر فدا تھی، لیکن وہاں میرا دل نہ لگا اور میں اپنی دنیا میں واپس بھاگ آیا۔ وہ بوتلیں تو آپ ساتھ ہی لائے ہوں گے؟ مسکرائیل نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جی ہاں، مرزا نے شدت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر جب انہوں نے رو رو کر معافیا مانگی تو میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ اچھا، تو یہ بات ہے، مسکرائیل نے کہا، اور میں نے اسے منہ ہی منہ میں کچھ بولتے دیکھا۔ اچانک مرزا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر مسلسل اچھلنے لگا۔ اس دوران اس کے منہ سے عجیب الفاظ نکل رہے تھے۔ میں صرف ارے باپ رے سمجھ سکا۔ وہ اپنی پتلون کو بری طرح جھٹک رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھدکتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کے ہونٹوں پر چھپی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بستر کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ کیا قصہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ پھر دیکھ لیجئے کہیں کوئی اور، مسکرائیل نے کہا۔ جی نہیں، میں اسے نکال آیا۔ لیکن مرزا بات پوری نہ کر سکا اور دوبارہ اچھلتا کودنا شروع کر دیا۔ اس مرتبہ وہ بہت زیادہ بے چین معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً باتھ روم کا رخ کیا۔ چند منٹ بعد وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یار بتاتے کیوں نہیں، کیا مصیبت آن پڑی ہے تم پر؟ میں نے جھجلا کر پوچھا۔ پتلون لال بیگ، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ او گویا آپس کا معاملہ ہے، مسکرائیل نے تبصرہ کیا۔ کہ کیا مطلب؟ مرزا کے لہجے میں ہفکی تھی۔ بھائی، آپ مرزا دہشت بیگ ہیں اور جو آپ کے گدگدیاں کر رہا تھا وہ لال بیگ ہے۔ اچانک مرزا نے پھر چیخنا اور اچھلنا شروع کر دیا۔ ارے باپ رے باپ، ارے کاٹتا بھی ہے۔ اس نے باتھ روم کی طرف پھر سے دوڑ لگا دی۔ اب کہ وہ باہر آیا تو بالکل ہی نڈال ہو رہا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، آپ بیگ ہیں اور وہ بھی بیگی ہے۔ لال ہے تو کیا ہوا، ہے تو بیگ ہی، گویا یہ آپ کا خاندانی معاملہ ہے۔ مسکرائیل نے یوں سلسلہ کلام جوڑا جیسے چند لمحے قبل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مرزا کے چہرے پر لرزے کے سے آثار تھے۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں، اس نے احتجاج کیا۔ توہین کا احساس لال بیگ کو بھی ہوتا ہوگا، اس لیے وہ آپ کو مسلسل تنگ کر رہا ہے، مسکرائیل نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اس کے کہتے ہی مرزا کی اچھل کود پھر شروع ہو گئی۔ البتہ اس دفعہ ایک نئی بات ہوئی۔ اس اچھل کود کے دوران اس کے پتلون کے بائیں پانچے سے ایک صحت مند سا لال بیگ ٹپکا اور سیدھا باتھ روم کی طرف بھاگا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی اور میں ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ مسکرائیل کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ بہتر ہے آپ اپنے نام سے بیگ الگ کر دیں۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، مرزا نے جواب دیا۔ اچانک ہی یہ مصیبت ٹوٹی ہے مجھ پر۔ دراصل یہ گھر ہی منحوس ہے۔ اس بات پر مجھے مرزا کی بے وزنی اور اس کے مناظر یاد آ گئے۔ میری ہنسی کی رفتار اور بڑھ گئی۔ ہنس لو خوب ہنس لو دوست نما دشمن، مرزا نے گرج کر کہا۔ نہیں بھائی مرزا صاحب، اس سلسلے میں سنجیدگی سے سوچیے ایسا کیوں ہوا؟ مسکرائیل نے اسے مخاطب کیا۔ شاید اس کی بات مرزا کے دل کو لگ گئی۔ مجھے پوری طرح نظر انداز کر کے وہ سنجیدگی سے ناک منہ پر زور ڈالنے لگا۔ آپ ناک میں سوچ رہے ہیں، اس طرح بات نہیں بنے گی، مسکرائیل نے اسے ٹوک دیا اور مرزا بری طرح گڑبڑا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے آپ اس سے پہلے جنوں کا تذکرہ کرے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی جن کو آپ کا انداز برا لگا ہو اور اس نے آپ کو سزا دی ہو۔ ارے نہیں، مرزا پہلے تو ہنسا، پھر اس کی ہنسی میں بریک لگ گیا۔ جی ہاں ممکن ہے، وہ بولا، ایک جن تو یہاں بھی رہتا ہے۔ مسکرائیل نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا نام تمراکیل ہے اور مرزا دہشت اسے بوتل میں بند کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا۔ ارے نہیں جناب، وہ تو مذاق تھا، مرزا نے یوں منہ اٹھا کر کہا جیسے چھت پر چشمہ کسی ہنسی سے مخاطب ہو۔ میں تو جن حضرات کا بہت معتقد ہوں۔ ہرگز نہیں، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جن کو بوتل میں بند کرنے کا فارمولہ جانتے ہو، تمہیں نے فرمائش کی تھی کہ تمراکیل کو تم سے ملواؤں۔ ارے عمران بھائی، مرواؤ گے کیا مجھے؟ وہ تو میں عقیدت کی وجہ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ کسی جن کو بوتل میں بھلا کون بند کر سکتا ہے؟ اور وہ جنہیں تم جنوں کی مملکت سے پکڑ کر لائے تھے، میں نے یاد دلایا۔ ہاں تم نے میرے سامنے یہی کہا تھا، مسکرائیل نے تائید کی۔
वो मामला और था। मिर्जा किसी सोच में पड़ गया। दरअसल बचपन में मुझे फिल्मों से बहुत दिलचस्पी थी। मैं चाइल्ड स्टार बनना चाहता था। इस चक्कर में घर से भाग निकला, फिल्म स्टूडियोज में धक्के खाता फिरा। फिल्म में काम वाम ना मिल सका। अलबत्ता एक स्टूडियो की कैंटीन में टेबल मैन की मुलाजमत मिल गई। मैंने इसे ही गनीमत जाना, क्योंकि वहाँ बड़े हीरो और हीरोइनों का दीदार नसीब हो जाता था। हदायतकारों और मुसन्निफों को तो मैं घास ही नहीं डालता था। 7-8 साल बाद जब मैं वहाँ से उकता गया तो अपने घर लौट आया और ये कहानी गढ़कर सुना दी कि मुझे एक जिन उठाकर ले गया था। बस इसी लम्हे मेरा राइटिंग कैरियर शुरू हो गया। और वो बोतल वाले जिन? मुस्कुराइल ने पूछा। अरे वो तो घर वालों को मरूब करने के लिए मैंने बोतलों में सिगरेट का धुआं भर लिया था, मिर्जा ने नदामत अमेज लहजे में कहा। इस मर्तबा मुस्कुराइल को हंसी आ गई। अलबत्ता मैं संजीदा रहा। मैं मिर्जा के फन का मुजाहरा देख बल्कि भुगत चुका था। मुझे इसकी किसी बात का एतबार नहीं आ सकता था। वो कमबख्त बला का गपसाज था। लेकिन मुस्कुराइल का बुरा हाल था। दोनों हाथों से पेट पकड़े वो हंस रहा था। इस तरह हंसते देखकर गालबन मिर्जा दहशत की अना को ठेस लगी। वो फिर अकड़ गया। ये अभी जो मेरी पतलून में लाल बेग घुसे थे, इन्हें आप क्या समझते हैं? उसने फखरिया लहजे में कहा। ये जिन्नों ही की कास्तानी है। मेरी इनसे हमेशा ठनी रहती है। कुछ और बस नहीं चलता तो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन मैं इनमें से किसी न किसी को बोतल में बंद करके ही रहूंगा। ये अमल मुझे खूब आता है। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। तो इस जिन का क्या नाम है इसका? तमतमराकील। कब मिलवा रहे हो इमरान भाई? मुस्कुराइल की हंसी में एकदम ब्रेक लग गया। आंखों में खौफनाक चमक नजर आने लगी। मेरा तो जी चाह रहा था कि मुस्कुराइल इसकी चटनी बना डाले, लेकिन इसे अपने हाथों से सजा देना ज्यादा मुनासिब था। चनाचा मैंने आंख के इशारे से मना कर दिया कि वो मजीद कोई हरकत ना करे। ऐसा करो मिर्जा, कल आ जाओ, मैं तमतमराकील को बुला लूंगा, मैंने नरम लहजे में कहा। अपना साजो सामान भी साथ लेते आना, फिर हम तुम्हारे फन का मुजाहरा देखेंगे। ठीक है इमरान भाई, मिर्जा ने सादतमंदी से कहा। मैं चलता हूँ। और हाँ, 1 5 का नोट होगा आपके पास? दरअसल पैसों की मेरे पास कमी तो नहीं, लेकिन इस अमल के लिए जो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं वो अपने पैसों से मैं खरीद नहीं सकता। मुझे इस बेहुदा दलील पर शिद्दत से गुस्सा आया, लेकिन हून के घूंट पी कर रह गया। मेरी जेब में सिर्फ 100 का नोट है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वही दे दीजिए। इस अमल में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि 5 का नोट ही ज़रूरी हो। मैंने जेब में हाथ डाला और नोट बाहर निकाल लिए। वो याद नहीं रहा, वो नोट तो मैंने खुला कर लिया था। मैंने कहा 5 नोट इसकी तरफ बढ़ा दिए। ऐसा करे 7 रुपये दे दें। वो मजीद फैल गया। मुझे ख्याल नहीं रहा था कि अमलियात का हिसाब 7, 11, 21 कुछ ऐसा ही होता है। मैं जानता था कि बेहद ढीठ आदमी है, पैसे लिए बगैर टलेगा नहीं। बेहतर है कि जल्द जान छुड़ा ली जाए। चुनाचा मैंने मजीद 2 रुपये इसके हवाले किए और बड़ी गर्म जोशी से मुसाफा किया। वो हमें खुदाफिज कहकर चला गया। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। फिर क्लॉक पर नजर डाली। 11:30 बज रहे थे। सुबह दफ्तर भी जाना था क्योंकि एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं देना था। लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। ये क्या बुला थी इमरान भाई? मुस्कुराइल ने मुझे चौंका दिया। ये मिर्जा दहशत बेग था। अपनी नवैयत का एक ही पीस है। बहुत ज़हीन है, तहलीकी कुव्वतों से माला माल है। इसके जरखेज तखय्युल का कमाल मैं देख चुका हूँ। कमबख्त ने कत्ल के इल्जाम में तकरीबन फंसवा ही दिया था। लेकिन हमारे बंजर मुआशरे में इस किस्म के लोगों की गुंजाइश जरा कम ही होती है। तो ये वाकई नावल नवीस मिर्जा दहशत बेग है? अगर ये वही है तो मुझे इसका नावल खूनी जिन बहुत पसंद है। मुस्कुराइल का लहजा पुरइश्तियाक था। हाँ, ये वही मिर्जा दहशत बेग था। बल्कि ये लाल बेग वाला क्या किस्सा था? कोई खास बात नहीं, मुस्कुराइल ने लापरवाही से कहा। वो बरादरी की तौहीन कर रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने मामूली सी सजा दे डाली। यहीं बैठे बैठे ना जाने क्या क्या कर सकता हूँ। और तमतमराकील कौन है? मैं ही हूँ। गायब होता हूँ तो तमतमराकील हो जाता हूँ, मैंने शर्माते हुए कहा। यार तुम बाकमाल आदमी हो, मान गया तुम्हें। मुस्कुराइल ने पुरसताइश निगाहों से मेरी तरफ देखा। तो कल तुम इसे तमतमराकील से मिलाओगे? हाँ, दवा खाकर गायब हो जाऊंगा, फिर खूब दुर्गत बनाऊंगा इसकी। बोतल में जिन को कैद करने का भूत सर से उतर जाएगा। लेकिन भाई, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि वाकई ऐसे अमल होते हैं जिनसे जिन कैद में हो जाते हैं। कहीं मैं मारा ना जाऊं। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और वाकई वो कुछ परेशान मालूम हो रहा था। अरे छोड़ो भी, वो कोई सचमुच का अमल तो है नहीं। चलो अब सो जाओ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। लेकिन मुझे तो भूख लग रही है भाई, उसने पेट पर हाथ फेरते हुए बेबसी के अंदाज में कहा। मैं भौंचका रह गया। यार, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने 6 आदमियों की खुराक पेट में उतारी है, अब फिर भूख? खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। अगर तुम्हारी भूख का यही हाल रहा तो मेरे लिए फाकों की नौबत आ जाएगी। क्या करूं, मजबूरी है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और हाँ, पैसों की कोई फिक्र ना करना। उसने जेब में हाथ डाला, 100 के नोटों की गड्डी लहराई। वो तो ठीक है, इस सूरत में तो पैसों की फिक्र वाकई तुम्हें करना पड़ेगी, लेकिन अब रात के 12 बजे खाना कहाँ से मिलेगा? मैं क्या करूं, मुझे भूख लगी। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। इसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि मैंने मिर्जा के जाने के बाद दरवाजा तो बंद ही नहीं किया था। मैं उठा और दरवाजा बंद करने की नीयत से चला आया। कमरे में रोशनी की वजह से आंगन का अंधेरा बहुत गहरा महसूस हो रहा था। अभी मैंने कमरे से बाहर कदम भी नहीं निकाला था कि अंधेरा मुतहरक हुआ और मुझसे टकरा गया।
मुझे संभलने का मौका नहीं मिल सका और चारों शाने चित्त कमरे में आ गिरा। मुतहरक अंधेरा भी ना समझ सका, वो भी मेरे ऊपर आन गिरा। कौन है? मैंने पूछा। मैं तो तुम्हें कभी नजर ही नहीं आती। कोई मिनमनाया। मुझे इसकी आवाज़ पहचानने में एक लम्हा लगा। फिर मैं बुरी तरह भिन्ना गया। मैंने उसे एक तरफ धकेल दिया, लेकिन मेरी पसलियों पर अब भी बोझ था। उठो ना। मैंने महल्ले में अपनी इज्जत और आफियत के पेश नज़र धीमे लहजे में चीखने की कोशिश की। मुझे तो गिरा दिया तुमने, बसूरती हुई आवाज़ में जवाब मिला। तो फिर ये कौन है? ये मेरी गठरी है। मैंने गठरी को धकेला और उठ खड़ा हुआ। क्यों आई हो यहाँ? मैंने सख्त लहजे में पूछा और झींपते हुए मुस्कुराइल की तरफ देखा, लेकिन जो कुछ मुझे नजर आया वो हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। मुस्कुराइल किसी सेहरज़दा मामूल की तरह इस तीगे आबनूस को तके जा रहा था। मैं तुम्हारे साथ, वो मिनमिनाई। क्या बकवास है ये, मैंने झिलाकर कहा। तुम बानो को साथ ले जा सकते हो तो मैं ये सरासर बकवास है। बानो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था और ये बात साबित हो चुकी है, मैंने जवाब दिया और खूब निगाहों से मुस्कुराइल की तरफ देखा, लेकिन वो नहायत वरफ्तगी से जैतून की तरफ देखे जा रहा था और मेरी तरफ मुतवज्जा ही नहीं था। हो ना हो हमारा ये तल्लक कभी नहीं टूटेगा। जैतून कलेजे में कतईयत थी। मैं बेबसी के जेरे एहसास लर्ज कर रह गया। बस चलता तो उसे कच्चा ही चबा जाता, लेकिन वो थी भी चपाती जैसे रंग की शख्सियत। और हाँ, ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अचानक जैतून के तेवर बदल गए। तुम्हारा लफंगा दोस्त, वो काली छिपकली जैसा, वो मुझे घूर घूर कर देखता है और आते जाते इशारे करता है। तुम इसे समझाते क्यों नहीं? किसी दिन मुझे खुद ही समझाना पड़ेगा। वो वाज़ह तौर पर मिर्ज़ा दहशत बेग का तस्करा कर रही थी। मिर्ज़ा की हरकतें मैं खुद भी देख चुका था। मैं जानता था कि मिर्ज़ा जहाँ है और जैसा है की बुनियाद पर मर मिटने के लिए तुला बैठा था। जैतून के दरवाजे का पर्दा हिलता देखकर फिदा हो गया। इसका इश्क किस किस्म का था मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, अलबत्ता इस आड़े वक्त में वही खोटा सिक्का मेरे काम आ सकता था। मैंने लहजे में मिठास समोने की कोशिश करते हुए उसे खुशखबरी सुनाई। वो तुम्हें ले जाना चाहता है। आम लड़कियों का चेहरा गुस्से या शर्म से सुर्ख हो जाता है, लेकिन जैतून के चेहरे पर मैंने इस रोज़ अजीब रंग देखा। इसका चेहरा बैंगनी रंग का हो गया। उसे तो मैं जूती की नोक पर भी नहीं मारती। वो मुठियाँ कसकर गुराई। हो गाजर का हलवा, और बस ज़रा नमक बहुत ज़्यादा है, चमगादड़ कहीं का। उसने दहशत बेग की बातें दोहराई। ये तो मैं भी कहता हूँ। मैंने अपना दिफा करने की कोशिश की। तुम्हारी बात और है। रोमांटिक बनने की कोशिश में वो भैंगी नजर आने लगी। उसे अपनी आंखों के जाविये दुरुस्त करो। ये इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने गर्दन अकड़ाकर कहा। सुभान अल्लाह, मुस्कुराइल के मुंह से बेसाख्ता निकला। लहजे में वराफ्तगी थी। जैतून ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। हाय अल्लाह, ये कौन है? ये मेरा गमजात है, इस्माइल नाम है इसका। मैंने गमजात को इस तरह इस्तेमाल किया कि गमजात और हमजात की दरमियानी शक्ल होकर रह गया। खैर होता रहे। तुम मेरी बात का जवाब तो बोलो, क्या कहते हो? तुम ये गठरी उठाओ और अपना रास्ता नापो। प्लीज़ अबू जी। वो गिड़गिड़ाने लगी और इसी हिसाब से मैं भी गड़बड़ाने लगा। इमरान भाई सुस्त आदमी मालूम होते हैं। मुस्कुराइल ने मुदाहलत की। तुम अकेली क्यों नहीं कहीं चली जाती? जैतून ने हकारत से इसकी तरफ देखा और बोली, अजीब अहमक आदमी हो, इतना भी नहीं पता कि अकेले नहीं भागा जाता। मुस्कुराइल कदरे शर्मिंदा नजर आने लगा। हमारे यहाँ तो अकेले ही भाग लिया जाता है, उसने शर्मसार लहजे में कहा। खैर यहाँ ऐसा नहीं होता होगा। वो किसी सोच में पड़ गया, फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला, चलो मैं भागूंगा तुम्हारे साथ। मैं भागूंगा? जैतून ने मुंह बिगाड़ कर नकल उतारी। जान ना पहचान चले हैं भगाने। जान पहचान का क्या है, भागते भागते ही हो जाएगी। मुस्कुराइल मुदाफ़ियाना लहजे में बोला। वैसे तुम कहाँ तक भागना चाहती हो? इस मरतबा मैंने मुदाहलत कर डाली। ए मेरे मासूम भाई, मैंने मुस्कुराइल को चमकारते हुए कहा, ये खुद डेढ़ उफ़क है। ये खुद डेढ़ क्या होती है इमरान भाई? मुस्कुराइल ने मेरी बात काट कर पूछा। तुम्हारे सामने धरी हुई है मेरे भाई। मैंने जैतून की तरफ इशारा किया। खवातीन का निसफ हिसाब की जुबान में खवातीन बटा 2। दरअसल हमारे यहाँ सिन्फ़ नाजुक को कम से कम 1.5 माना जाता है, अलबत्ता 1.5 से भी ज़्यादा हो सकती है। हाँ तुम कुछ बता रहे थे, मुस्कुराइल ने मुझे याद दिलाया। मैं ये कह रहा था कि ये खुद 1.5 ना सिर्फ उफ़क़ के उस पार तक भागना चाहती है, बल्कि वहीं कहीं किसी छोटी सी झोपड़ी में अपना घर भी बसाना चाहती है। ये मेरी और इसकी बदनसीबी है कि इसकी नजर करम मुझ जैसे आदमी पर पड़ गई। मुझसे तो अकेले भी नहीं भागा जाता। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ शादी भागते दौड़ते होती है? भागते दौड़ते भी होती है, मगर ऐसी शादी का अंजाम यही होता है कि मियाँ बीवी को मरदे दम तक भागते ही रहना पड़ता है। आगे आगे वो होते हैं और पीछे पीछे समाज। दरमियान में मुनासिब या नामुनासिब वक्फों से बच्चे भी इस रेस में शामिल होते रहते हैं। वाह, खूब एडवेंचर रहता होगा, मुस्कुराइल ने खुशी से हाथ मलते हुए कहा। फिर वो जैतून की तरफ मतवज्जा हो गया, जो मेरी तरफ देखकर खूब दांत पीस रही थी। और इस गठरी में क्या है? उसने जैतून से पूछा। इसमें मेरे कपड़े और जेवरात हैं, जैतून ने फखरी लहजे में जवाब दिया।
कमाल है, भागते वक्त तो इंसान को हल्का फुल्का होना चाहिए। मुस्कुराई कलेजे में हल्की सी मायूसी दर आई। यहाँ तो हर चीज उल्टी मालूम होती है, भागते वक्त और ज्यादा बोझ लाता जाता है अपने ऊपर। जो कपड़े पहने ना जा सके इन्हें गठरी में लपेट कर उठा लिया जाता है। वैसे ये बात जरूरी है क्या? जरूरी है, मैं इन पर बोझ बनना नहीं चाहती। जैतून ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो गठरी ट्रांसपोर्ट का काम देती है, तब तो बहुत जरूरी है। मुस्कुराइल बोला, मेरी तो जान ही जल कर आएगी। अलबत्ता जैतून ने इस बात में सर हिला दिया। तो हुआ 1.5, मेरे पास फिलहाल तो गठरी नहीं है। अलबत्ता मैं बगैर गठरी के भी आपके साथ भाग सकता हूँ, लेकिन ये रस्म जरूरी हो तो मैं गठरी का बंदोबस्त भी कर लूँ। जेवरात की तो शायद मुझे जरूरत नहीं होगी। तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत नहीं होगी। जैतून ने बिना कर कहा, अगर यूं हर एक के साथ भागने वाली होती तो अब्दुल वदूद मर गया क्या? मैं तो बस अबू जी को पसंद करती हूँ। मुस्कुराइल ने एक दिलदोज आह भरी और पेट पर हाथ फेरने लगा। शायद उसे फिर भूख सताने लगी थी। अच्छा जैतून, अब तुम यहाँ से चलो, वरना मुझे काजी साहब से बात करना पड़ेगी। हाँ, आइंदा कभी यहाँ ना आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सख्त लहजे में कहा। नहीं, तुम यहाँ जरूर आया करो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। मुस्कुराइल ने दर्दनाक लहजे में कहा। और आइंदा मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखना, मैंने मजीद कहा। अलबत्ता आंख उल्टा करके, आंख गिराकर, जिस तरह भी चाहो मुझे देख सकती हो। मुस्कुराइल ने टुकड़ा लगाया। ओह, मेरे ख्वाब देखने छोड़ दो। मेरे ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं। जैतून ने पहले मेरी तरफ शाकी नजरों से और फिर मुस्कुराइल की तरफ ममनूयत भरी नजरों से देखा। आप बहुत अच्छे हैं। वो मुस्कुराइल से मुहातिब हुई। अब मैं आपके बारे में सोचूंगी। जरूर सोचना, मुस्कुराइल ने बाछी खिलाकर कहा। और हाँ, तुम्हारी गठरी में खाने पीने की कोई चीज है? नहीं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मुस्कुराइल पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, अजीब बात है, भागने के लिए तुमने गठरी में कपड़े भी रख लिए और जेवरात भी, लेकिन खाने पीने की कोई चीज नहीं रखी। हालांकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आइंदा ख्याल रखूंगी। जैतून ने सादतमंदी का मुजाहरा किया। क्या भूख बहुत लग रही है? उसने हमदर्दाना लहजे में पूछा। मुस्कुराइल ने इस बात में सर हिला दिया। मूंग की दाल की खिचड़ी और चटनी खाएंगे? इस वक्त मैं हर चीज खा सकता हूँ, मुस्कुराइल ने जवाब दिया, लेकिन बहुत सारी लाना। मैं अभी लाई। ये कहकर वो बाहर की तरफ लपकी। ये गठरी लेती जाओ अपनी, मैंने पुकारा। फिर ले जाऊंगी, उसने जवाब दिया और मैं सर पीटता रह गया। वो बाहर निकल गई। सर पीटने से फारिग होकर मैं मुस्कुराइल की तरफ मतवज्जा हुआ। यार, तुम जरूर मरवाओगे, बेड़ा गर्क कराओगे मेरा। इसकी समझ में कुछ भी ना आया। नचार मैंने उसे माशरे में भागने वालों का मुकाम, भागने की माशरती कबाख्तें वगैरह सब समझाया। ठीक है, मैं समझ गया। मेरे चुप होने के बाद वो सर हिलाते हुए बोला, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? और जैतून से? मैं दहल कर रह गया। मैं कुछ और भी कहना चाहता था कि जैतून एक बड़ी सी प्लेट में खिचड़ी लिए नमूदार हुई। खिचड़ी पर वो खूब सारी चट्टी भी सजा कर लाई थी। मेरे मुंह में पानी भर आया। मुस्कुराइल ने वो प्लेट छीनी और मरबगों की तरह खिचड़ी पर टूट पड़ा, लेकिन चटनी इसका नाम पूछे ले रही थी। इसकी नाक से, आंखों से पानी बहता रहा। वो सू सू करता रहा, लेकिन खिचड़ी हड़प करता रहा। इसे प्लेट थमाकर जैतून पानी का गिलास भर लाई और अजीब शफकत अमेज निगाहों से उसे देखती रही। मैं दिल ही दिल में लरसता रहा। अगर मोहल्ले में किसी को पता चल जाता कि जैतून इस वक्त मेरे घर में मौजूद है तो यकीनी तौर पर मेरा तो काम तमाम हो जाता। मैं ज़ेरे लब खुदा से हैरो अफियत तलब करता रहा। मुस्कुराइल ने प्लेट साफ करके जैतून के हवाले की और फिर पानी डकार गया। फिर इसने हाली गिलास जैतून की तरफ बढ़ाया। और पानी लाओ, उसने शोहरों के तहमकाना लहजे में कहा। जैतून निहाल हो गई और लपक कर गिलास भर लाई। इस बार मुस्कुराइल ने गिलास खाली करके जैतून की तरफ बढ़ाया तो मेरा पैमाना सबर छलक गया। मैंने गिलास इसके हाथ से छीन लिया। यार, तुम जितना कहोगे मैं पिला दूंगा, मैंने आजिजी से कहा। खुदा के लिए इसे तो जाने दो। जाओ भाई तुम, मैंने जैतून से कहा। उसने फिर शाकी निगाहों से मुझे देखा, फिर पलट कर चल दी। ये गठरी भी ले जाओ अपनी, मैंने पुकारा। उसने वापस आकर गठरी भी उठा ली। इस वक्त तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुस्कुराइल ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। इसके लहजे में सच्चाई थी। और हाँ, आइंदा गठरी में खाना रखना कभी ना भूलना। जैतून ने संजीदगी से इस बात में सर हिला दिया और कमरे से निकल गई। मैं भी इसके पीछे ही लपका। दरवाजा खोलकर मैंने दाएं बाएं झांका। गली सुनसान थी। चलो जाओ, मैंने जैतून से कहा, और अपनी इस स्याह छिपकली को समझा देना वरना पिट जाएगा मेरे हाथों। उसने धमकी दी और बाहर निकल गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बखैरो अफियत ब्लाट टलने पर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर मैं कमरे में पलट आया। मुस्कुराइल इत्मीनान से पांव फैलाए लेटा था, लेकिन इसकी सूसू अब भी जारी थी। मैं अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। यार, मुझसे संजीदा होकर बात करना, मैंने उसे मुखातिब किया। सच बताओ, वो तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी, बड़ी मजेदार, उसने कहा। अलबत्ता तीखापन बहुत ज्यादा है। कहाँ की हाँक रहे हो? मैं बुरी तरह बिन्ना गया। मैं जैतून की बात कर रहा हूँ। ओ, मैं समझा खिचड़ी और चटनी के मुतालिक पूछ रहे हो। हाँ भाई, वो भी बहुत अच्छी है। तुम कह रहे थे कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है, मैंने याद दिलाया। तो इसमें हैरत या परेशानी की कौन सी बात है? मोहब्बत कोई बुरी चीज है क्या? फिर वो लड़की तो है ही मोहब्बत के काबिल।
तुमने शायद उसे गौर से नहीं देखा। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा बगौर किसी हस्ती को देखा ही नहीं। वाह क्या बेमिसाल हुस्न था, मेरी आंखें चकाचौंध होकर रह गई। मैंने गौर से इसकी तरफ देखा, लेकिन लेजे की तरह इसके चेहरे पर संजीदगी थी। न जाने क्यों मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ गया। अजीब बदज़ोक आदमी हो तुम। मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि इस लड़की में ऐसी कौन सी खूबी है। देखो दोस्त, पहली बात तो ये है कि मोहब्बत की अपनी एक नज़र होती है। इसका हुस्न, इसकी खूबियाँ देखने के लिए ज़रूरी है कि तुम उसे मेरी आंख से देखो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये बात तय है कि मुझे इससे मोहब्बत होगी। और हाँ, एक बात और, तुमने कभी मोहब्बत की है? हाँ की है, मैंने जवाब दिया। साथ ही मेरी निगाहों में रेशमा का सरापा लहरा गया। मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। कैसी है वो? उसने तजस्सुस अमेज लहजे में सवाल किया। बेहद हसीन, इतनी हसीन कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तो खैर साइंस का आदमी हूँ, शायर भी इसके हुस्न को लफ्ज़ों में नहीं सिमट सकते। खैर मेरे तसव्वुर को तुम छोड़ो। उसने चुपते हुए लहजे में कहा, ये बताओ तुम्हें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिला या नहीं? उसके सवाल ने मुझे दुखी कर दिया और मुझे रेशमा की बेमहरी याद आ गई। बेमहरी जिसमें अजीब सी अपनायत भी थी। नहीं, बिलाखिर मैंने जवाब दिया। बस ये बात है, हसीन लड़कियों के नखरे भी ज्यादा होते हैं। इसने फलसफियाना लहजे में कहा, तुम इसके म्यारे हुस्न पर पूरे नहीं उतरे होगे। फिर वो अगर तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, तब भी इस्तक़लाल की ज़मानत नहीं दी जा सकती। वो हसीन है, इसे और लोग भी सराहेंगे। किसी भी वक्त वो मरकर मोहब्बत तब्दील कर सकती है और किसी और की तरफ मुल्तवित हो सकती है। लेकिन जैतून के और मेरे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं होगी। इसकी बात किसी तेज धार वाले हंजर की तरह मेरे दिल में उतर गई, लेकिन जल्द ही मैंने खुद को संभाल लिया। लेकिन तुम तो जिन हो, मैंने एतराज़ किया। जिनों और इंसानों के दरमियान ऐसे रिश्तों की मिसालें मौजूद हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन तुम अपनी मंगेतर को इसलिए नापसंद करते हो कि इसके सींग छोटे हैं। जैतून के सर पे तो सिरे से सींग ही नहीं है। मैंने एक और दलील पेश की। सींग लंबे ना हो तो फिर इनका ना होना ही बेहतर होता है। उसने एक सरदा भरकर कहा, अगर जैतून के सर पर सींग होते और लंबी सी दुम भी होती तो वो कितनी हसीन लगती। मैंने कहा। फिर मुझे बेहतर हंसी आ गई। तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मेरी मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ा सकते। वो अचानक ही बिछड़ गया। उसे गजबनाक देखकर मेरी हंसी यकलत रुक गई। इसके अंदाज ने मुझे यकीन दिला दिया कि वह जैतून पर बुरी तरह फ़रेफ्ता हो चुका है। लेकिन इस फ़रेफ्तगी का तस्वर ही मेरे लिए मज़ाक़ खैज था। अलबत्ता अब हंसना भी महदूद था। अब मैं सोना चाहता हूँ, उसने रूठे हुए अंदाज में कहा और करवट बदल ली और मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी। फिर मैं भी बिस्तर पर आ लेटा। कुछ देर मैं करवटें बदलता रहा, फिर मुझे नींद आ गई। लेकिन वो कुछ अच्छी नींद नहीं थी। तमाम रात जैतून मेरे ख्वाबों में दंदनाती रही, कभी ज़ोर ज़ोर से दुम हिलाती, कभी सींग मरोड़ते हुए शर्माती, कह के मेरे पेट में मचल रहे होते, लेकिन हंसने की मजाल न होती। सुबह मेरी आंख जल्द ही खुल गई। आंख खुलते ही पता चला मैं पेट के दर्द की वजह से जल्दी उठाऊं। दर्द की वजह गालबन वही ख्वाब थे जिनमें मुझे अपने बेसाख्ता कैकों को पेट में ही ठूसना पड़ा था। उठते ही मैंने बावर्ची खाने का रुख किया। मुस्कुराइल की खुश खुराकी की वजह से होटल का रुख नहीं करना चाहता था। बावर्ची खाने में ज़रूरत की सब चीज़ें मौजूद थी। मैं बाजार से दूध, डबल रोटी, मक्खन और अंडे खरीद लाया। नाश्ता तैयार करके मैंने चाय का पानी रखा और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से निकला तो मुस्कुराइल उठ चुका था। मेरे निकलते ही वो बाथरूम में घुस गया। अच्छा भाई, अब मैं दफ्तर जा रहा हूँ। नाश्ते से फारिग होकर मैंने मुस्कुराइल से कहा, वापसी कब होगी? उसने परेशान होकर बीवियों के से लहजे में पूछा। आज दफ्तर में भी जंग लड़नी है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, बहरहाल मैं शाम तक आ जाऊंगा। नोटों की गड्डी तुम्हारे पास मौजूद है, जी भरकर खाना, लेकिन खुदा के लिए इस जैतून से दूर रहना। जरा सी भी कमजोरी दिखाई तो वो तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगी। तो इसमें क्या बुरी बात है? महल्ले वाले तुम्हारी चटनी बना देंगे। तुम अभी हमारी माशरती जिंदगी से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, तो फिर मेरी मोहब्बत का क्या बनेगा? उसने दर्दनाक लहजे में पूछा। इस सिलसिले में जैतून के बाप से बात करेंगे। मैंने उसे दिलासा दिया। वो बेचारे तो ये खुशखबरी सुनकर इतने मसरूर होंगे कि तुम्हें जहेज की सूरत में बहुत सा इनाम इकराम भी देंगे। अच्छा, ज़रूर बात करना, मुस्कुराइल ने बेहद खुश होकर कहा। मैंने ज़रूरियात के मुताबिक दवाओं के कैप्सूल अपनी जेब में रखे और उसे खुदा हाफिज़ कहकर घर से निकल आया। सारे रास्ते मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करता रहा, जो अचानक ही बेहद गैर हकीकी होकर रह गई थी। ऐसा लगता था कि मैं कोई अफसाना पढ़ रहा हूँ, हकीकतों से परे। जब वो ज़िंदगी खुद मुझे अफसाना लग रही थी तो मैं जानता हूँ कि आप उसे हकीकत हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस पर इसरार भी नहीं करूँगा। मैं दफ्तर ठीक वक्त पर पहुंच गया था। दफ्तर में खासी तादाद में लोग मौजूद थे। कुछ अरसे से इश्तियाक साहब ने दफ्तरी औकात के मामले में सख्ती बरतना शुरू कर दी थी। खुद इश्तियाक साहब अपने कमरे में ही मौजूद थे। मैंने हाजिरी लगाई और अपनी सीट पर आ बैठा। अभी मैंने फाइल निकाली ही थी कि यासीन मेरे पास आ गया और बेहद राजदाराना अंदाज में बोला, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के सिलसिले में इश्तियाक साहब की एसी साहब से भी बात हुई है। तो फिर? मैंने आंखें निकाली। क्या करूं मैं? इस सिलसिले में डीसीओ साहब से मिलूं? क्या बात है यार, मिर्ची चबा कर आए हो क्या? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, सीधी सीधी बात करो ताकि मैं मतलब ही समझ सकूं। एसी साहब बात को आगे बढ़ाने के मूड में हैं।
ایکسپلینیشن کی کاپی تمہاری پرسنل فائل میں لگا دی گئی ہے، اگر تمہارا جواب ذرا بھی کمزور ہوا تو تمہیں شوکاز دے دیا جائے گا۔